تو آج آپ کے سامنے جو ہے یہ 3 حروف لائے گئے ہیں، نام میم ہے۔ یہ ہے جو ہے گول ہے، اس کو چھوٹی ہے بولتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی ہے، آپ کو بتائے اس دونوں کے شکل میں بھی فرق ہے اور آواز میں بھی فرق ہے۔ دراصل یہاں آواز سخت ہے، جیسے پہلے جو ہے بتایا گیا ہے اس کو تھوڑا زور دے کر کے ہے کی طرح، اور اس کو ہلکے سے ہے بولے۔ اب یہ دیکھیے لام ہے، لام ایک شکل ہے، یہی جو ہے چاہے شروع میں ملے یا بیچ میں ملے گا، بیچ میں ملے گا یا شروع میں ملے گا، آخر میں اگر یہ اس طرح کا آپ جو دیں گے تو وہ الف ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے یہ شکل اوپر سے سیدھا آیا، نیچے تھوڑا سا گھما ہے، یہ گھما اور یہ گاف میں مل گیا، یہ لگ ہو گیا۔ یہ جیم لام میں ملا ہے، ذرا سے یہاں گھما ہے، اور یہ نون کو اس میں ملا ہے۔ پھر لام الف دیکھیے آپ، یہاں بھی لام الف ملا، اس کے پہلے بھی ملا ہے، یہاں نون ہے۔ تو یہ لام جو ہے شروع میں آئے گا یا پھر بیچ میں آئے گا۔ یہ میم دو شکل ہے، دیکھیے آپ، ایک میم نیچے سے گول کر کے لمبا کھینچا گیا ہے تھوڑا سا، دوسرا کیا ہے گول کر کے اوپر چلا گیا ہے۔ یہ اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو آئے گا یہ میم پہلا شکل جو ہے وہ تین میں ملایا گیا۔ یہاں دیکھیے پہلے ہی مال میں دوسرا شکل، میں دوسرا شکل، مالک میں بھی دوسرا شکل، اور بیچ میں بھی جب آئے گا یہی شکل آئے گا، سمجھا؟ یہ جو ہے اسی طرح کہ الف میں یہ ملتا ہے اور یہاں یہ ملا ہوا ہے، اس طرح سے یہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے کو دیکھیے، ہے کا بہت سے شکل دیا گیا ہے، 4 شکل ہے۔ دیکھیے یہ ہے جو ہے تھوڑا سا گول کر کے دونوں طرف نوٹ لگا، اس کو یہاں نام ملا ہے۔ یہ دیکھیے اوپر جو ہے تھوڑا سا گول کر کے نیچے کی طرف لایا ہے، جس کو میم میں ملا ہے۔ یہ دیکھیے اوپر سے لا کے اس کو خدن کی طرح بنایا گیا، جو ہے ملا ہوا ہے، رے ملا، اور پھر اسی طرح سے یہ ہے نام میں بھی ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ دراصل بیچ میں آتا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے دونوں طرف کوئی حرف ملا ہوگا، آگے بھی اور پیچھے۔ اس کی مثال آپ یہاں دیکھیں، یہ ہے کہ پہلے سین ملا ہوا ہے، آخر میں رے ملا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ پہلے سین ملا ہوا ہے اور نام ملا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہے دیکھیں، یہ تھوڑا سا جو ہے کج کر دیا گیا ہے، یہ ہے جیسے یہاں دیکھیے یہ اس طرح سے لایا گیا، اسے اس میں نیچے کر دیا گیا، یہ جیم کا حصہ اتنا ہے، پھر یہ گاف کا حصہ یہاں تک ہے، اس کے بعد یہ نون کا حصہ یہاں تک۔ تو اس طرح سے یہ ملانے والا شکل آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ آپ اس کو سمجھیں، بغیر اس کی سمجھے آپ اردو میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہے نام میم ہے، نام میم ہے، میم 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 ہے 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 ہے۔ پھر سے دیکھیے نام میم ہے، نام میم میم ہے 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 ہے۔ یا بجائے بجائے یہ ہے اسی طرح نام کی بات نام کی نہیں ملا، اس لیے یہ نام علی ہوگا، علی جلدی ہوگا، وہ کنارے ہوگا، جیسے دیکھیے علی، یہ علی، یہ علی، یہ علی، تو آخر میں جب آئے گا تو وہ علی ہوگا، اگر پہلے آئے گا تو لام ہوگا، بیچ میں آئے گا تو لام ہوگا۔ اس طرح سے یہ فرق آپ کو جاننا پڑے، یہ سمجھنا پڑے کہ بیچ میں اور شروع میں جب آئے گا اس طرح سے تو لام ہوا، اور آخر میں جب آئے گا تب وہ علی ہوگا۔ اسی طرح سے میم کو دیکھیے، میم کا شکل، یہ 2 شکل آپ کے سامنے لایا گیا ہے، میم میم مت مان آئیں، یہ آپ مشق کریں گے تب یہ شکل بنے گا۔ آپ ایسے موٹا کر کے گھما کر کے ایسا کر دیں گے تو
तो वो आराम से। इसी तरह से हे को देखिए, हे इस तरह से बनाया गया, चांद की तरह बना दिया गया, और नीचे जो उनका फेस चांद की तरह बनाया गया। ये हे देखिए नाम में मिलाया गया, ये हे चांद की तरह बनाया गया, इसको एक सिरा और नीचे की तरफ लाया गया ताकि दूसरे हरफों को मिल सके। यहाँ मीम में ये देखिए ऊपर भी तिरछा है और नीचे भी घन की तरह बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि दोनों तरफ फर्क होगा, आगे पहले भी और बाद में भी। यहाँ शहर भी देखिए, फिर यहाँ शहर भी देखिए, ये देखिए थोड़ा सा जो है उन्हें कज कर दिया गया, समझा, इसको कज कर दिया गया है। कज तो ये है ही कहलाएगा। इसकी मिसाल देखिए यहाँ है, ये इतना ये है, फिर ये जीम है, ये गाफ है, ये नून है, ये है। तो इस तरह से लाम का 1 सेकंड और मीम का 2 सेकंड आपके सामने लाया गया, और हे का जो है 4 सेकंड आपके सामने लाया गया, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ये उर्दू में ज़रूरी होता है कि इसके जो मिलाने वाले शक्लें हैं वो सब आपके सामने आ जाए, ये ज़रूरी है। इसके लिए आप अब इसके और भी मिसाल तो आप देखिए, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आप ये आसान किया जा रहा है ताकि आप समझ सकें। लाम की शक्ल को देखिए, लाम मीम हे, इसी तरह मिलाने वाला शक्ल बना लाम मीम हे। अब देखिए जैसे ये नाम है, गाँव में अगर है लगाम, ये देखिए गाँव में, ये देखिए बे में, नून में, समझा। जैसे दुल्ला वाली जैसे लिखते हैं दल्लन, नो दल्लन, उसके बाद ये देखिए नाम गाँव 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 नाम। अब इसी को फिर आप जैसे नाम को लिखना चाहते हैं, देखिए जैसे हम लिखते हैं लल्लू, कल्लू, चुल्लू, भोलू, ये सब नाम मिला है इसमें। नाम देखिए वहाँ लल्लू में देखिए पहले भी नाम, बीच में भी नाम, कल्लू में देखिए बीच में नाम, चुल्लू में देखिए बीच में नाम, भोलू में देखिए वाव में मिला हुआ नाम। तो इस तरह से आप जब लिखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपके जहन में बात आती जाएगी। जैसे लिखते हैं अबुल खैर, ये देखिए अबुल हसन, अबुल खैर, ये ऐसे है तो बीच में, लेकिन जब आप मिला हुआ को सिर्फ पढ़ेंगे तो ये शुरू में है। अबुल हसन में भी अली को इधर छोड़ दीजिए तो नाम शुरू में हो जाता है, इधर भी अली छोड़ दीजिए तो नाम शुरू में हो जाता है, लेकिन है वो ऐसा के देखेंगे। तो इस तरह से नाम का इस्तेमाल होता है। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं अबुल कलाम, अबुल कलाम में नाम काफ के पहले भी है और काफ के साथ भी है कलाम,
तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब वो किसी हर्फ में मिल जाएगा तो वो लाम है, अलिफ नहीं रहेगा, लाम है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जब वो किसी हर्फ में मिल जाएगा तो वो लाम है, समझा? जब किसी हर्फ में मिल जाएगा तो लाम हो जाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि अलिफ जो है वो आखिर में आएगा, बीच में नहीं। बीच में अगर आएगा तो अकेला आएगा, आखिर में आएगा तो मिल के। जैसे आप लिखते हैं ना, ना देखिए ये अलिफ आखिर में है, इसमें मिला हुआ है, तो इस तरह से जब वो आएगा तो आखिर में जब आएगा तो इससे मिलेगा, लेकिन बीच में या शुरू में जब आएगा तो वो अकेले आएगा। जैसे अब्दुल कलाम में आप देखिए अलीफ बेव, अलीफ अकेला है, फिर अलीफ लाम काफ लाम, इसमें सब है जो हम आपको बताना चाहते हैं। अलीफ शुरू में है अकेला है, अलीफ बीच में है वो अकेला है, अलीफ आखिर में है वो लाम। तो आप याद रखिए अलीफ आखिर में आएगा तो किसी हरफ के साथ मिल के आएगा, बीच में और शुरू में आएगा तो वो अकेला आएगा। और अगर किसी हरफ में वो मिल जाता है तो वो अलीफ नहीं रहेगा, नाम, समझा? ये आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें सारा चीज। अब देखिए जैसे खिदमत, खिदमत, जैसे मिलना, जैसे मवाद। ये खिदमत देखिए पहला मिलना, मिलना में पहला मिलना, मवाद में भी पहला, समझे? लेकिन ये मीम बीच में भी आता है, जैसे आप लिखते हैं लम्बा, लम्बा, और आखिर में जब आएगा रामी हो, जैसे या जान, इस तरह से इसमें पूरा है। ये हो गया लंबा, जो शुरू में नाम आया, बीच में मीम। तो ये मीम जो है शुरू में भी आता है और बीच में भी। ऐसे चिलमन, चिलमन, जैसे चमन, जैसे आप लिखते हैं मंजन, ये शुरू में आया, तो इस तरह से इस मीम का इस्तेमाल होता है, आप याद रखिए। अब देखिए एक शक्ल मीम का है, ये मीम जो है बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, समझा? ऐसे खींच देने से लोग पढ़ने का पढ़ लेगा, लेकिन वो मीम पता नहीं। ऐसे देखिए यहाँ देखिए इस मीम का इस्तेमाल, और यहाँ जो है इस मीम का इस्तेमाल, समझा? इस तरह से देखिए ये मीम शुरू में तो अलिफ के साथ आया ही है, साथ साथ ये बीच में भी आया है अलिफ के साथ ही, समझा? जैसे आप लिखते हैं
ऐसे दिखेंगे तो लोग इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इस मीम को इसमें मिलाया गया, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही ये, समझा? ये दोनों तरह से दोनों मीम इसमें लिखते हैं। तो इस तरह से आप इस मीम को भी जान गए और नाम को भी जान गए कि कहाँ से डाला है। अब देखिए ये है जैसे आप लिखते हैं जैसे लिखते हैं आप जैसे लिखिएगा आप जैसे लिखेंगे आप तो इस तरह से इस हे का इस्तेमाल आप देखिए काफ में क्या गया, नाम में क्या गया, अलिफ में क्या गया, समझा? और जैसे हे दाल में इस्तेमाल करते हैं, यही हे का इस्तेमाल। अब आइए जैसे ये है जैसे हम जैसे जैसे हरी, जैसे होली, जैसे होली, हरी, हिंद, हम, हिंद, होली, फूल, ये सब पहला शकल है। दूसरा शकल है, पहला शकल ऊपर, दूसरा शकल नीचे। अब देखिए तीसरा शकल देखिए, शहद। ये देखिए ये तीसरे जगह तीसरे शकल का इस्तेमाल किया गया। आप देख लें इस बिल्कुल शकल आप मिला लीजिए ऊपर से नीचे से, जितना भी आपको बताया जा रहा है सब में आप शकल मिलाइए ताकि आपको इत्मीनान हो। अगर आपको इत्मीनान नहीं होता है तो फिर आप समझेंगे, आप ऐसे ही जो है जैसे सर से पानी ऊपर होता है वैसे, इसलिए आपको समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तभी आप सही हैं। इसके बाद देखिए है ये शकल, जैसे वजह ना,
इस तरह से आप देखिए ये वजह न जगह मिला हुआ है। तो इस तरह से आपके सामने सारी बातें लाई गई। जैसे यहाँ आपको बताया इस तरह से आपके सामने आज 3 ग्रुप सामने लाए गए। नाम, मीम, हे। ये हिंदी में है, तो आप हिंदी अगर जानते हैं तो हिंदी पढ़ के आप ये समझ लीजिए कि नाम इस शक्ल का होता है, मीम इस शक्ल का होता है, हे इस शक्ल का होता है। नाम, मीम, हे। नाम, मीम, हे। अब नाम का एक शक्ल है ये नाम, मीम का 2 शक्ल, मीम, मीम। ये हे का जो है 4 शक्ल। ये हे चांद की तरह बना दीजिए, नीचे उल्टा प्रेस दे दीजिए। इसको भी आप चांद की तरह बनाइए और थोड़ा सा तीसरा नीचे कर दीजिए, एक उल्टा प्रेस कर दीजिए। और ये क्या है, ये उल्टा चांद बना करके उसके ऊपर जो है एक तिरछी लकीर सटा दीजिए। और ये बिल्कुल जिसको दोकोना कहते हैं, दोकोना की तरह बनाइए। और अब इसका इस्तेमाल देखिए। ये लाम आप देख रहे हैं, ये गाफ में मिला। ये लाम यहाँ जीम, नाम के पहले जीम लाया गया, फिर मीम में मिलाया गया, फिर ये देखिए गाफ में नाम मिलाया गया, फिर इस नाम को नाम में मिलाया गया। आपको हम बताया है अगर ये अलग हो जाएगा गाफ से, ये अलीफ हो जाएगा। ये जीम और नून से अलग हो जाएगा तो नाम आ जाएगा, अलीफ हो जाएगा। ये गाफ से अलग हो जाएगा तो आप याद रखें कि सटेगा तो नाम होगा, अलग रहेगा तो अलीफ। अलीफ जीम किनारे में जब आएगा तो वो किसी हर्फ के साथ आएगा, किनारे में जब आएगा तो किसी हर्फ के साथ, लेकिन बीच में और शुरू में जब आएगा तो वो अलग। और नाम जब भी आएगा वो मिल करके आएगा, और आखिर में जब आएगा तब वो अकेला आएगा। मीम मीम मत मार, मीम मीम को ते में मिलाया, मीम को अलिफ में मिलाया, मीम को अलिफ में मिलाया, मीम को नाम में मिलाया, मीम को अलिफ में मिलाया। ये इस तरह से आपके मीम का इस्तेमाल है। फिर ये हे देखिए 4 शक्ल में आया है। ये हे देखिए काफ में मिलाया, ये हे लाम में मिलाया, ये हे अलिफ में मिलाया, ये हे लाम में मिलाया। फिर ये दूसरी शक्ल को देखिए, मीम में मिलाया, नून में मिलाया, रे में मिलाया, वाव में मिलाया, आगे वाव में मिलाया। तीसरे शक्ल को देखिए, कोहराम दोनों तरफ हर्फ है, गहरा दोनों तरफ हर्फ है, शहर दोनों तरफ हर्फ है, सुहैल दोनों तरफ हर्फ है, शहद दोनों तरफ हर्फ। और ये बिल्कुल आखिर में है, ये कहीं शुरू में या बीच में नहीं आए, ये बिल्कुल आखिर में ही आए। जैसे देखिए वजह, ये जो नीचे लाए यही है ना, ये इस तरह से आपके सामने सारी बातें लाई जाए ताकि आप इसको मिला के देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें, जो आपके लिए बिल्कुल आसान है। इस तरह से आप याद रखिए, ये नाम मीम हे, नाम मीम मीम, हे
हे नाम हिंदी में भी नाम मीम मीम हे नाम नाम की करना करना लगा मत मान मान गाहक हल खुद कहिए हिंद कहिए बोली कहिए हम हिंद हरी बोली हूँ कोहराम कहरा शहर सुहैल शहर वजह न वजह। तो इस तरह से नाम मीम है नाम की शक्ल को आप देखिए ऊपर से ला करके नीचे गोल किया गया मीम को देखिए मीम पहले ऊपर गोल कर दिया गया फिर नीचे सीधा बनाया अगर आप उसको तिरछा कर देंगे तो वो मीम वे हो इसलिए उसको सीधा बनाया फिर गोल है ये है आप देख रहे हैं ये गोल ही रहा और फिर दो चश्मी है भी आता है तो दो चश्मी है और ये है दोनों एक ही चीज़ दोनों दो चीज़ नहीं है याद रखिए हिंदी में उसी को नाम है हिंदी में नाम है फिर नाम के शक्ल को देखिए आप नाम के जो है शक्ल को देखिए किस तरह से नाम की शक्ल को नाम का हिस्सा काट करके छोड़ दिया गया बना दिया लग जलना लगा जलका मत मार मालिक जी माँ गाहक हल हाँ खुद हे हम हिंद हरी होली हूँ कोहराम गहरा शहर सुहैल शहर वजह न जगह। तो इस तरह से आपके लिए आसान कई मरतबा लिख के बताया गया कई मरतबा लिख के बताया गया कि किस तरह से मीम होता है किस तरह से हे होता है और कहाँ कहाँ मिलता है मिला करके ही बताया तो इस तरह बिल्कुल साफ अंदाज में जिस तरह अलीफ से ये तक का जो कोर्स है ये बच्चों का बिल्कुल इब्तदाई कोर्स है बिल्कुल इब्तदाई कोर्स इसी इब्तदाई कोर्स के हिसाब से आपको बताया है अगर आपने अलीफ से ये तक बाज़ाब्ता इस पढ़ाई में शामिल हुए और मेहनत करके पढ़ते रहे तो आप समझिए उर्दू लिखने पढ़ने की इतना जानने के बाद कोई वजह नहीं है कि आदमी उर्दू लिखना पढ़ना कोई वजह अगर नहीं कोई जानता है तो इसका मतलब है जिस मेहनत के साथ उसको बताया जा रहा है जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है उस तरीके से वो मेहनत नहीं इसलिए आपको मेहनत करना ये देखिए एक शक्ल है नाम ये नाम लग जलना लगा मीम 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 मत मार मानी हे 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 हल आ हे दूसरा शक्ल देखिए हम हरी हरी कहरा शहर शहर वजह न वजह। तो जिस तरह से नाम मीम है नाम मीम है फिर से देखिए नाम मीम है नाम मीम है नाम मीम है नाम का हिंदी नाम मीम हिंदी मीम है हिंदी और इसकी जो शक्ल बदलती है बदल के हरूफ मिला करके पूरी तहरीर की जाती है किताब लिखी जाती है नाम की शक्ल ये है मीम का ये है और एक चार ये आपको नहीं जानना चाहिए बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते बगैर इसके आप कुछ लिख भी नहीं सकते पढ़ भी नहीं सकते इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जानें और लिखने के लिए आपको मशक करना पड़ेगा इसलिए कि ये शक्ल बनाना आसान तो है लेकिन मशक के बाद ये शक्ल बनाना आसान तो है लेकिन मशक के बाद जानने के बाद लेकिन सब मशक के बाद ये देखिए आप या आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आप समझेंगे ये आप नीचे के उल्टा पेज देख रहे हैं जहाँ ये आएगा तो आप समझेंगे कि ये है जिस शक्ल में भी होगा तो आप उसको ही पढ़ेंगे लेकिन आप ये नहीं समझ सकेंगे ये शक्ल कहाँ जाके बना है
ये शक्ल कहाँ मिलता है, ये शक्ल कहाँ मिला, ये शक्ल कहाँ। एक दूसरी बात यह है कि इसमें जो कोहराम लिखा हुआ है, ये देखिए कोहराम लिखा हुआ है। अगर आप जानते हैं कि ये शक्ल इसमें मिला हुआ है, तब आप समझ जाएंगे कि ऊपर से यहाँ तक काफ आया है, बाकी यहाँ तक ये है और बाकी ये है, समझ जाएंगे। लेकिन अगर इस शक्ल को नहीं जानते हैं कि क्या है, तो आप इसके रहते हुए कोहराम पाएंगे, लेकिन बगैर हे समझे ये हे। इसी तरह गहरा में देखिए, आप गहरा में देखिए, गहरा हे में जो है काफ मिला हुआ है, हे मिला हुआ है। अगर आप शक्ल को पहचानते हैं, तब आप समझेंगे कि इसमें कितना हिस्सा काफ का है, कितना हिस्सा हे का है, और कहाँ से ये हे उसमें जाकर चल गया है। तो ये जानना जरूरी है, बगैर इसके आप समझ ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप बगैर इसके जान जाए कि कौन है, कहाँ तक है। ये आप उसी वक्त जानेंगे जब सबके शक्ल को पहचानेंगे, सबके शक्ल को आप पहचानेंगे, तभी जो है ये आप आगे किसी। इसलिए आप याद रखिए इस शक्ल को आप याद रखिए। ये नाम है, ये नाम है, मिलाने वाला नाम है। आप हर जगह अगर आखिर में इस तरह का नाम नहीं है, लोग क्या समझेगा, ये लिखा तो है वो नाम, लेकिन इसका कितना हिस्सा ऐसे जैसे आप कहेंगे और ये आल मुकम्मल है, जो सही है, लेकिन अगर कौन करता आप इसको इस तरह से लिख के छोड़ दीजिएगा, तो लोग समझेगा कि ऊपर आल लिखा हुआ है, नीचे भी आल लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसका ये हिस्सा छूट गया, ये हिस्सा समझा, ये हिस्सा छूट गया, तो यही सब कहेगा, यही कहेगा कि ये हिस्सा छूट गया है, लिहाजा इसको इस तरह होना चाहिए, ये कहेगा जो सही है। इसलिए कहेगा कि आखिर में जो आता है वो मुकम्मल आता है, आखिर में जो आता है वो मुकम्मल आता है, आखिर में कटा हुआ नहीं, मिलाने वाला नहीं, किसी भी हद अलीफ से ये तक जितने भी हरूफ हैं, आखिर में जितना भी आएगा वो सब मुकम्मल आएगा। आप देखेंगे भी यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें भी आप देखिए और पढ़ेंगे भी, आपको इसलिए आप याद रखें ये नाम मीन है और नाम मीन है चलता हुआ है, बात करके आपको। अब हम ये चाहते हैं कि आपको जो है फिर जहाँ ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, वहाँ आपको शुरू से फिर याद दहानी के तौर पर आपको बता, ताकि आप भूलेंगे। ये देखिए, जब हम लिखते हैं आपको हरूफ तहकी शुरू से आगे, वो आज जो हम बताया है शक्ल नाम भी है, वो शक्ल मौजूद है, आप इसको देखते रहिए। और इसके पहले जो हम बताया है वो आपके सामने जैसे कैसे ये तो हम याद दहानी के तौर पर आपको बताते हैं। दूसरी इसकी वजह ये है कि इसकी तरतीब आपको याद है, बे पे ते से, किसी भी किताब में आप इसकी तरतीब देखेंगे, इसलिए इसकी तरतीब है। अगर बे की जगह पर पे लिखेंगे, ते की जगह पे लिखेंगे, से की जगह पर बे लिखेंगे, तो ये तरतीब के एतबार से वो गलत है। रूप तो उतना ही होंगे, लेकिन तरतीब के एतबार से वो गलत है। तो आपको तरतीब भी याद पूछता है कि तरतीब क्या है, आप एक तरह से एक सांस में बता सकते हैं। इस तरह से आपके अंदर ये ताकत पैदा होनी चाहिए।
अब देखिए आप अलीफ बे ते से जीम चे हे खे दाल 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 रे जे सीन शीन साद दाद तो जो ऐन गैन ये आप काफ गाफ नाम मीम नाम मीम ये जहाँ अलीफ से मीम तक जितना हर्फ लिखा गया है वही आपको वहाँ नाम मीम जो आप समझिए कि आज नाम मीम जो बताए गए तो नाम मिलाने वाला शक्ल मौजूद है मीम का मिलाने वाला शक्ल मौजूद है और अलीफ से गाफ तक कल आपको बताया गया था तो इस तरह से नाम मीम तक आपको सब बताया गया तो आप इसको याद रखिए और आप बैठ करके जुबानी इसको याद जुबानी याद करने की कि हरूफ तहजीब और तरतीब के साथ आप अलीफ बे पे से जीम से हे से दाल 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 रे सीन शीन सात जात तो जो ऐन से आप का गाफ मीम ये आपको एक सांस में याद हो जाते हैं अलीफ बे पे से जीम से हे से दाल 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 रे जे सीन शीन सात जात तो जो ऐन से आप का गाफ मीम आप देखिएगा शीन दो मरतबा लिखा है असल में सीन का दो शक्ल होता है जो आपके सामने इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों से जगह सोसा के बीच सीन होता है और सोसा के साथ ताकि आप दोनों को अच्छे से समझ सकें कहीं आप परेशान नहीं कहीं आपकी ये बात समझ में आ जाए क्या कहाँ से आ गया इसलिए इसको याद रखें ये पे से जीम से हे से दाल 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 रे जे सीन सात दाल तो जो ऐन है पे ताप 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 नाम मीम मीम पे से जीम से हे से दाल 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 रे जे सीन सात दाल तो जो ऐन है पे ताप 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 नाम मीम इधर लाम मीम है जिसके मिलाने की शक्ल है लाम मीम ये दो शक्ल आपके सामने लाया गया और बाकी जो है शक्ल आपके सामने पहले ही आप किताब निकाल के किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए आपको किताब पढ़ने आ गया अगर आपने जितना आपको बोर्ड पर बताया गया है अगर इसको आप देख रहे हैं समझ रहे हैं तो फिर अब आप किताब पढ़िए किताब पढ़ने आपको आ गया समझ और लिखने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा जुबानी भी लिखना पड़ेगा देख करके जो इसका असूल है तो आप कुछ भी कोई भी किताब निकाल सकते हैं चाहे वो अखबार पढ़ें चाहे कोई भी किताब पढ़ें किताब खोल के कितना आसान है अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है और अगर पूरा वीडियो आपने नहीं देखा है तब आपको परेशान ये मेहनत सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप उर्दू सीखें उर्दू जब आप सीख लेंगे तो आप ये समझिए कि एक जुबान और जुबान किसी एक की नहीं है जुबान सबकी उर्दू जुबान में बहुत सारे खसूसियात हैं ये सबसे बड़ी बात ये है ये उर्दू जुबान जो है इस मुल्क की पैदावार जुबान है इस मुल्क में ये पैदा हुआ इसी मुल्क में ये फला फूला और यहीं से जो है पूरी दुनिया में ये मशहूर हुआ और क्या है कि सारा लोग इसको जानता है सारा लोग इसको सीखता है और बोलता है एक बंगाली है वो भी उर्दू लिखना न जाने पढ़ना न जाने लेकिन बोलता है समझता जरूर है आप अपने शहर में भी देखिएगा कितने बंगाली हैं ये इस उर्दू की खास खसूसियत है ये उर्दू की खास खसूसियत है आप देहात में भी चले जाइए लोग उर्दू बोलते हैं पढ़े लिखे चाहे कोई भी हो वो उर्दू बोलता है और शहर में आइए सब को देखिए उर्दू ही बोलता है दुकान पर जाइए दुकानदार भी उर्दू बोलता है सब्जी बेचने वाला भी उर्दू बोलता है हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर है वो भी उर्दू बोलता है भले ही वो उर्दू को उर्दू समझ के नहीं बोलता लेकिन चूंकि ये जुबान जो है वो आम फहम जुबान हो गई जो हर कोई बोलता है बच्चा आँख खोलता है तो उसको यही कहता है मालिश करता है पानी बोलता है
खाना बोलता है, पीना बोलता है, सोना बोलता है, ये सब क्या है? ये इसी जुबान है जो ये जुबान हर जुबान दर्द है, हर आदमी की जुबान पर यही है। और वो जाने न जाने लेकिन अनजाने में भी वो उर्दू बोलता है। उर्दू की ये मकबूलियत तालम है, इसलिए आप इसको ध्यान से सीखिए, पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको बोलने तो आता है, लिखने भी और पढ़ने भी आ जाएगा। इतना मेहनत के साथ आसान तरीके से खोल खोल करके तोड़ करके एक नहीं कई मरतबा मिसाल दे करके आपको समझाया जाता है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये और यहाँ तक बताया गया। कल इंशाअल्लाह नून वाव हे ये 3 हरूफ कल भी बताए जाएंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके सीखेंगे और मेरी तो यह ख्वाहिश है कि आप दूसरों को भी इसके सीखने की तरकीब दें। और इंशाअल्लाह आज का क्लास यही खत्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल आपसे बात होगी। हो गया भाई? सुन रहे हैं रिजवान साहब? हो गया।